Should I explain to you once again? No, sir. I'll just explain to you once again if you're having any doubt. एक मिनट. Just a minute. What you are able to see on my screen picture? Image दिख रही है क्या आपको? नो सर, अभी तो No, sir. डाउनलोड वाली स्क्रीन दिख रही है। डाउनलोड भी नहीं हो रहा। Yes sir, nothing is showing. Yes sir, अभी कुछ दिख रहा है। यस सर, अभी ब्लैक ग्रे हो गया है। हाँ सर, अभी अभी? दिख रहा है। सर अभी दिख रहा है। अभी सीधी दिख रही क्या image? यस सर। Yes, हाँ. sir. If you see what I was saying, the question number 1, there were 2 sub questions. The first question was something like AB is equal to 16. Okay. And AD was 12. Okay. AD was 12 and something what CM was 10 centimeter. And what then asked you to find BL. So if you see BL, they asked you to find. BL they ask you to find. Now tell me, see if you are able to see, there are 2 heights. One is BL. एक height BL है और दूसरी height क्या है बेटा? 90 डिग्री वाली? Sir, CM. PM. अगर ये height है यहाँ पे, ओके, और ये height है यहाँ पे, मुझे बताओ BL का बेस क्या हुआ? AD. AD. और CM का बेस क्या हुआ? AB. AB. वेरी गुड. अब मुझे बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसमें भी चाहिए था, ठीक है, और इसमें भी पैरेललोग्राम चाहिए था. ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. If you see, you are having a value of CM is 10 and AB is 16. And यहाँ पे AD की वैल्यू कितनी थी? 12 and BL की वैल्यू कुछ थी नहीं क्योंकि BL के लिए निकालना था. Which one you will solve? First one or second one? First one. First one. You'll get answer 160. अब इसका एरिया 160 है तो इसका भी एरिया 160 रहेगा कि चेंज होगा? Sir, 160 only. 160 only. अब आप बेल अगर BL निकालोगे तो you'll get 160 upon 12 will be how much? 13.33 meter. That will be the height. Any question in this doubt? Because many of the students have messaged me for this question only. Done now? Yes, sir. You can take a screenshot also. Same thing. Now coming to question number 2. If you see the question number 2 properly, what they have given to you, AD is 10 centimeter. What is AD? 10. 10 centimeter. CM is 8 centimeter. CM is how much? 8. BL is 12. BL is 12. They asked you to find AB. Okay, now tell me what you'll do first. Now see, AD सबसे पहले बेस निकालो. 2 बेस है और 2 हाइट है. कौन से बेस है बताओ पहले. अगर इसमें भी दिक्कत है तो हम याद रखो पहले हाइट निकालो. पहले 2 हाइट बताओ. कौन से हाइट है 2? So BL and CM. If I take BL here and CM here, okay. BL का बेस क्या है? BL किसके ऊपर है? AD. सर DA. Okay, जिसके ऊपर 90 डिग्री मार्क बनाते हैं, that is called DA या AD. Okay, I will just write AD. Just wait. What is the base here in another parallelogram? Means same. If CM is there, height. AB. then base. AB. AB. Okay, this is also area of parallelogram. This is also area of parallelogram. Okay, किसकी वैल्यूज दी है पूरी दोनों? ADBL या ABCM? Sir, ADBL. AD is 10 and BL is how much? 12. 12. So you'll get 120 centimeter square is a parallelogram. So यहाँ का जो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो भी 120 रहेगा. Now can you take out the value? What is the CM value of CM or AD? What is the value of CM? Sir 8 centimeter. 8. 8 centimeter.
Can you take out the value of AB now? Can you take out the value of AB now? Yes, sir. Done. Easy. 120 upon 8. How much it will be? 8 ones are 8. 15. 15 centimeter will be the height of AB. 15 centimeter. 15 centimeter. Any doubt now to anyone? Should I erase it? Yes, sir. Easy था question, कोई hard नहीं होता. You have any doubt in this question number 8 now? No, sir. Anyone who is having doubt? No doubt. Okay. No doubt. Okay. Exponents and power. First question. Any going to doubt to anyone now? Sir, no doubt. Sir, no doubt. Easy. Question number 2. Sir, no doubt. Sir, no doubt. Sir, no doubt. No doubt. Question number 3. Sir, doubt. Yes, sir. Sir, doubt. Question number 3. Doubt. Okay. Now, if you see the question, I'll just come to the screen. Everyone, please give me a thumbs up if everyone is attentive in the class. Just give me a thumbs up if everyone is attentive in the class. What is that question? Into minus 7 by 4 into 3 by 2. Okay. Now, see, observe the question carefully. Observe the question carefully now. I just need to open the picture. Just wait. जो original picture है उसको मुझे निकालने दो पहले. This is not original picture. This is also not original picture. Just wait, huh? Just wait, huh? Just wait. Let me know if this is the picture, this is the question. Yes, sir, it is. Yes, sir. Sure? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, great. Okay, now, see, should I solve it here only? Any doubt? No, sir. Yes, sir. Now, ऐसे क्वेश्चंस में अगर नंबर्स सिमिलर दिख रहे हैं और कुछ कट हो सकता है तो उसको कट कर दो. Now see, if you see, I already told you कि नंबर्स किस फॉर्म में रहना चाहिए, 2 और 2, 3, 5 एंड 7 के फॉर्म में. ऐसा कोई नंबर है जो 2, 3, 5 एंड 7 के अलावा कोई और है यहाँ पे? Sir, 6. Sir, 6. Sir, 6 and 4. Sir, Four. 6. 6 एंड 4. 6 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे फिर? 3 into 2. Sir, 2 3 into into 3 2. into 3 raised to the power 2. एंड 4 के 2 into 2 into 2. 2 into 2. 2 raised to power 2. 2. So can I write like this? 2 upon 3 into 2 upon 3 into 2 upon 3. ये क्लियर हुआ क्या पहले बताओ? 3 बार था, तीनों बार लिख दिया. स्क्रीन अच्छे से दिख रही है Yes, कि sir. कुछ डाउट है? कलर चेंज करो कि बड़ा लिखो? नहीं सर, ठीक है. No, sir. Sir, ठीक है. ठीक है. मल्टीप्लाई. अभी 6 है तो 6 को मैं ऐसे लिख सकता क्या? 2 into 3. Yes, sir. Yes, sir. Yes, If I, if I write like this, 2 into 3, can I write like this? कि 2 minus 2 upon 7 minus 2 upon 7 minus 3 upon 7 क्या ऐसे लिख सकते हैं अपन?
-3/7. Yes, Sir, sir. -3. No, sir. Yes, sir. Sir. See, if you see 6 can be written as 2 into 3, तो ये जो 2 होगा वो इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा. कोई डाउट है यहाँ तक? बट एक चीज है उसमें तुमको ऑब्जर्व करना था, तुम लोग वहां पीछे रह गए, वहां ध्यान नहीं दिया किसी ने. ओके, नाउ सी ऑब्जर्व इट केयरफुली व्हाट आई विल टेल यू. जस्ट वेट, आई एम रिपीटिंग इट. Sir, we will have to write 2 into 3. Yeah, just wait. I'll do it. Now see, आपने देखा लेकिन 7 तो 2 ही बार था. आपने 7 को उसको फिर 4 बार कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? वो भी आपका एक सवाल है, वो भी एक डाउट है. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान, क्योंकि उस समय आपका फोकस रहना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें सॉल्व क्या करना है. फर्स्ट थिंग यू कैन राइट लाइक दिस, 2 into 3 and 2 into 3. मुझे बताओ, इसको आप 2 बार लिख दो, -6 into 7 -6 into 7. इसको एक बार लिखो, -7 into 4 into 3 into 2. Any doubt to anyone now till here? This one time and this also one time. No, sir. Yeah. Done? Is there any doubt to anyone now? No, sir. No, sir. मुझे बताओ, see, if you see it properly, okay, you can first cut down कि जो कट रहा है उसको काट दो. ये 3 और ये 3 कट गया. कोई डाउट यहाँ तक? पहला वाला, No, sir. ये 7 और ये 7 कट गया. देखना उसका माइनस बचा है, माइनस पे कुछ किया नहीं मैंने, हाँ? बस याद रखना. यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. If you see this 2 and this 2 cut, any doubt? No, sir. This 2 ones are 2 and 2 2s are 4. 2 ones are and 2 ones are. Any doubt now till here? Pakka? If you see 3 ones are and 3 2s are. Similarly, 3 ones are and 3 2s are. So what will be the remaining? What will be remaining there at the end? -2, ये वाला, multiplied by -2, this one, multiplied by ये 7 का माइनस बचा था, -1, अपॉन डिनोमिनेटर में कितना बचा? 4. 7 बचा डिनोमिनेटर में 7. So -2 into -2 into -1 will be how much? Tell me. 3 numbers है. Sir, -4. +4. -4 upon 7. This is the final answer. सर पर वहाँ पे तो 3 नंबर है ना माइनस साइन में. तो -1 भी ऐसा +4 रहेगा. नहीं ना बेटा. See, I told you. अगर 2 नंबर्स रहे, हाँ, अगर 2 नंबर है तो प्लस रहता है, 3 नंबर रहे तो नेगेटिव. और जब भी आएगा तो याद रखना नंबर नेगेटिव ही आएगा, इवन रहेगा तो नंबर पॉजिटिव आएगा. यहाँ तक किसी को डाउट है क्वेश्चन में? बताओ. No, sir. श्योर? ऐसा कोई है सर नहीं समझा, फिर से एक्सप्लेन कर दो. इज देयर एनीवन? श्योर? No, sir. अभी मेरी आवाज पहले से एकदम रुक के नहीं आती ना, अच्छे से आती है ना अभी, कि पहले से लो आती है? सर अभी अच्छी आती है. थैंक यू. एक मिनट, मेरे को स्क्रीन पे जाने दो पहले. जस्ट वेट. Now, third question is solved. See, the option is -4/7 also given there. आपका -4/7 ही आ रहा था ना? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Okay. In this question, you are having any doubt now? Can you solve it? Now, if you see such kind of questions, सबसे पहले 12 को ब्रेक डाउन करो. 12 को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे बताओ मुझे. 12 के फैक्टर्स क्या है? सर 2 raised to the power 2 into 3. 2 into 2 into 3. कभी भी 2 into 2 के फॉर्म में लाना. Okay, raised to the power 4. Can I write like this? 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 4. ऐसा लिख सकता है क्या? उसको मैं बताओ पहले. Yes, sir. Yes, sir. I can write first the factors and उसकी जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 9 का क्या है? 9 कब बनता है? Sir, 3 into
3 into 3. 3 into 3. 3 into 3. लेकिन 3 into 3 को पावर के फॉर्म में लिखो, 3 raised to the power 2 raised to the power 3, तो क्या होगा ये एक्चुअली 3 raised to the power 9. नो, 9. यहाँ पे 6 3 4 को raised मैं to क्या power लिख सकता 6. हूँ? 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 raised to the power 2 लिख सकता हूँ। Yes, sir. Sir. अच्छा 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 के फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6? 2 raised to power 3. 2, 3. 2 raised to the power 3. मतलब 2 raised to the power 3 and 3 raised to the power 3। चलो ये भी हो गया। 8 को क्या लिख सकता हूँ? 8 को 2 raised to the 2 power raised to 3. the power 4. Sir, 2 Sir, is to the 2 power raised to three. the power 2 raised 3. to power 3. 2 raised to the power 3 और 2, तो कितना होगा ये? पावर पावर मल्टीप्लाई होते हैं, क्या होगा वो? 2 raised to the power 6. 6. 6। परफेक्ट। 27 के फैक्टर्स बताओ। 3 into 3 into 3, 3 से 9, 9 से 27, तो 3 3 को फॉर्म में लिखो, कैसे लिखो? 3 raised to the power 3. 3। किसी को कोई डाउट अभी बताओ मुझे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर आपने वो 9 रेस्ट टू द पावर 3 में जो 3 रेस्ट टू द पावर 3 अपॉन जो 3 लिखा है उधर प्लस किया है और वो 2 वाले में मल्टीप्लाई किया है। किसमें किसमें? सर वो जो 9 रेस्ट टू द पावर 3 है ना, दिस वन? यस सर। हाँ, तो 9 is equal to 3 into 3। सर उसके नीचे वाली स्टेप में वहां पे आपने प्लस किया है और वही 8 रेस्ट टू द पावर 2 में वहां पे आपने मल्टीप्लाई किया है। बेटा एक बात बताओ, 9 का ये क्या होता है? फैक्टर्स क्या है? 3 into 3 यस सर। मीन्स 3 raised to the power 2 यस। और 3 raised to the power 2 था और ऑलरेडी ये पावर 3, तो 2 3 का कितना होगा? 6। तो आप कैसे बोले प्लस कर दिया? सर वो मुझे 3 दिखा इसीलिए बोला मैंने। बेटा नंबर चेंज सॉरी करो, सर। नंबर चेंज कराओ, मैं पैसे देता हूँ। जस्ट joke, take it as a joke. Done. Beta, any doubt, Nutan? नो Is सर। there anyone who's having any doubt now here? No, sir. Aman, Aditya, where is Reet? Where is Yashraj? No, sir. No doubt. Okay. No doubt, Now, sir. coming to the main question. See, 12 की power 4 है, तो 12 की power 4 के हमने factors निकाले। क्या निकला वो? 2 raised to the power 4 into 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 4. 9 raised to the power 3 के factors क्या क्या निकले थे? 3 raised to the power 6 multiplied by 4 raised to the power के 2 raised to the power 2. 6 raised to the power 3 के 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 3 and 8 के 2 raised to the power 6 and 27 का 3 raised to the power 3. अब यहां से तो आप इजी कर सकते हैं ना, किसको किसको कट करना है समझ सकते हैं यहाँ से? कोई डाउट? सिंपल सिंपल, जो नंबर सिमिलर है न्यूमरेटर में उसको एक कर दो। कौन से नंबर सिमिलर है? 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 2 into 2 raised to the power 4. ओके, इनको ऐड कर दो, क्या होगा वो? पावर 4 मैक्सिमम, सब पावर्स सब बेस सेम है, तो क्या होगा? 4 + 4 + 4 12 + 2 14 हो जाएगा। Can you do it from this part or should I do it? Sir, we can do it. No, sir, we can do. Sure ना? ये हंसी इजी है, ऐसे कोई डाउट नहीं है। Okay, just wait. This one, any doubt in question number 5 now? I've given purposely to you. Now I told you, just I'll solve one example for you. If you see, base same है क्या दोनों का? जब base same है तो powers क्या होती है आपस में? Equal हो जाती है। क्या हो जाती है? सर इक्वल हो जाती है। इक्वल हो जाती है। तो 2n = 12, तो n की पावर कितनी हो जाएगी? 6। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। देखो यहाँ पे 6 कहाँ पे था? हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी 6 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो बेस सेम है क्या? हाँ, बेस यहाँ पे भी सेम है। इट इज सेम हियर, इट इज सेम हियर, इट इज सेम हियर। लेकिन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? देखो 5n डिवाइडेड बाय है, तो क्या होगा? डिवाइडेड बाय मींस -n माइनस इक्वल टू 2 raised to the power 4। तो जब बेस सेम है तो वो दोनों इक्वल में आएंगे, तो इट विल बी 5n - n = 4 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1n है, तो 5n - 1n विल बी हाउ मच? 4n = 4. So it will be n raised to the power 4/4 will be how much? 1. Any doubt in such kind of questions? But you need to remember that आपको वो जो denominators है वो सेम करना है। अब बताओ कोई डाउट है क्या आपको?
if you see ये वाले जो क्वेश्चन है, see this question, if you see 2n minus 5 multiplied by 5n minus 4 is equal to 5. Now in such kind of question, is the base same in the left hand side? No, sir. अच्छा, ये 5n minus 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो नीचे जाके क्या होगा? नीचे आएगा तो क्या होगा? 5n minus 4 डिवाइड में आएगा. कोई डाउट? No, sir. Now you can do. Now what you can do, you know? Five n, ये दोनों जब डिवाइड में, तो so I can write like 1 minus n minus 4. Can I write like this? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yeah, it's similar. It's same. If you see, it will be how much? 5 1 minus n plus 4. It will be how much? 5. ये plus 1 है. Plus 1 plus 4. 5 minus n. It will be like this. So it will be 2 raised to the power n minus 5 and minus n minus 5 हो जाएगा वो. इसको अगर मैं रिवर्स करके लिखूंगा तो ये क्या होगा? ऐसे हो जाएगा वो, माइनस n माइनस 5. इसका आंसर बेसिकली, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर 1 ही रहता है, याद रखना कभी भी. ये सिंपल क्वेश्चंस है, ये तो भी मैंने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट दे दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले. अभी कोई डाउट है तो बताओ. Yes, sir. पक्का कोई डाउट नहीं है ना? श्योर? सर मुझे नहीं समझा. Sir, please explain it मुझे again. भी नहीं समझा. या ओके. सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर द बेस इज डिफरेंट. वहां पे बेस सेम है कि अलग अलग है, बताओ मुझे पहले. Sir, different. सर डिफरेंट है. Sir. बेस डिफरेंट है, ठीक है. इफ यू सी, इट इज 2n minus 5 multiplied by 5n minus 4 upon 5. ओके. नाउ मुझे बताओ, अच्छे से देखो, आपको क्या दिख रहा है? कभी भी बेस क्या रहना चाहिए? सेम. सेम. बेस आपको सेम दिख रहा है क्या? No, sir. नो सर. जब बेस सेम नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो? सर एलएचएस में आरएचएस में जाके माइनस का ऑपरेशन, अपोजिट ऑपरेशन. क्या क्या बोले बेटा? व्हाट यू सेड? सर एलएचएस या आरएचएस में जाके अपोजिट ऑपरेशन. ऑपोजिट ऑपरेशन. ओके, ठीक है. जस्ट वेट, आई एम हैविंग टू डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉल्व इट. आई विल टेल यू कैसे करते हैं. ठीक है, एक मिनट. मैं इसको मिटा दूं पहले. ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. There is a blank screen now. See, one technique is like this. 2n minus 5 और क्या था वो? Multiplied by 5n minus 4 5. यही क्वेश्चन था कि नहीं था? पहले बताओ. सर. Yes, क्या sir. मैं 2n minus 5 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 raised to the power n upon 2 raised to the power 5. क्योंकि जब 5 जाएगा तभी जाके वो ऐसा बन जाता है ना, 2 raised to the power n minus 5. Can I write like this? Yes, Is the sir. first step clear to you? Is the first step clear to you now? Tell me. Yes, sir. Similarly, if it is there 5n minus 4, can I write like this? 5 raised to the power n upon 5 raised to the power 4. Because इसको आप रिवर्स करके देखोगे तो आपको सेम ये मिलेगा. किसी को यहाँ तक डाउट है तो बताओ. No, sir. No, No sir. doubt. So can I write like this? 2 raised to the power n upon 5 raised to the 2 raised to the power 5 multiplied by 5 raised to the power n upon 5 raised to the power 4 is equal to 5. ये फर्स्ट स्टेप में किसको नहीं समझा ये बताओ मुझे अभी. डोंट वरी, पोस्ट द रिकॉर्डिंग. बस मेरे को क्लास का जज याद कराना कि सर पोस्ट कर दो रिकॉर्डिंग, मैं पोस्ट कर दूंगा. फर्स्ट स्टेप में किसी को डाउट है तो क्लास की बताओ. रिकॉर्डिंग की है. रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. हाँ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. ओके सर. मुझे बताओ कोई डाउट है क्या बेटा? बताओ. No, sir. नो No, सर. sir. ठीक है. अब मुझे बताओ, ये जो दोनों डिनोमिनेटर है इसको मैं ऊपर फेंक दूंगा तो ये विल गो टू द 5. 2n into 5n बच गया यहाँ पे, एंड यहाँ बचेगा 5 raised to the power n multiplied by 5 raised to the power 4 multiplied by 2 raised to the power 5. यहाँ तक किसी को डाउट?
नो सर सर वो 5 के No, ऊपर sir. n है ना? हाँ हो गया। अब बताओ, तो 2 5 जा 10, 10 रेज़ टू द पावर n। कोई डाउट यहाँ पे? ये समझा? यस सर सिमिलरली यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 1 और यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 4 है, तो जब मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों पावर्स क्या होगी? प्लस, सो इट विल बी 5 रेज़ टू द पावर 5 एंड 2 रेज़ टू द पावर 5। अब मुझे जब दोनों की पावर्स 5 है तो मल्टीप्लाई कर दो, 10 रेज़ टू द पावर क्या 5. होगा वो? 5 ओनली। 5 पक्का यहाँ तक कोई डाउट? अब जब पावर्स देखो बेस सेम है तो क्या होता है, n इज इक्वल टू व्हाट, हाउ मच इट विल बी? 5 5 5. ये टेक्निक सबसे अच्छी है, मतलब बेसिकली अगर इफ आई टेल यू, ये बहुत शॉर्ट मतलब लॉन्ग ट्रिक है जो मैं इसके सर पहले ये बता रहा इजी है ना? हाँ ये इजी है, दिस इज लॉन्ग। जो मैं बता रहा था वो शॉर्ट टेक्निक थी, बट तो तुम यही इजी वाली करो, नहीं तो भूल जाओगे। दूसरी ट्रिक बताऊंगा तो फिर से बताओ कि समझ गया। दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ। समझ गया सर। सर एक बार फिर पक्का से ना? करके बताओ ना। सर एक बार फिर से सर दूसरा क्वेश्चन सर एक बार दूसरा क्वेश्चन करके बताओ ना. Sir, एक बार दूसरा क्वेश्चन. चलो दूसरा क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, मुझे दूसरा क्वेश्चन देखने दो क्या है। डोंट वरी, आई डन द रिकॉर्डिंग, आई विल जस्ट अपलोड इट। सर आपने वही फर्स्ट वाली टेक्निक से करेंगे ना दूसरा क्वेश्चन भी? नहीं जो मैंने बताया अभी वो वाला करो। तो फर्स्ट वाली टेक्निक से मत करो, थोड़ा वो हो जाएगा, किसी को समझेगा नहीं। ये वाला करके दिखाओ, 1250 वाला। यस सर। यस सर. यस सर क्या था 1250 ना? 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर, नहीं कितना था, 5 रेज़ टू द पावर n - 4। ओके, सर योर स्क्रीन इज हैंगिंग. इट इज नॉट हैंगिंग बेटा, हैंगिंग घर पे रहती है, वो हैंगर में, इज डिफरेंट। नाउ 5 रेज़ टू द पावर n - 4 इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन था? नहीं क्वेश्चन ये नहीं था। 5 रेज़ टू द पावर n - 5 1250 ना, समथिंग 1250 है। यस सर 1250 वाला था। नाउ इफ यू टेक आउट द फैक्टर्स ऑफ 1250, क्या निकलता है देखो। पहले इसको फैक्टर्स निकालो, किससे डिवाइड करो? 5 से डिवाइड करो, जब भी 0 आएगा। 5 2 जा 5 5 जा 250, 550, 5 20, 5 10, 5 2 2 1 जा 2। कितने बार 5 आया बताओ? 1250 कितने बार आया देखो। 5 रेज़ टू द पावर 4, पावर 1 इसको एंड ये जो 2 रेज़ टू द पावर 7 है उसको उधर लेके चल जाओ। अब मुझे बताओ 2 वाले कौन? 5 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 4 को क्लोज ला लो, 2 रेज़ टू द पावर 1 एंड 2 रेज़ टू द पावर 7 को पास ला लो। अब मुझे बताओ जब बेस सेम है तो पावर्स क्या होगी उनकी? सर सर प्लस इक्वल. प्लस, तो 4 + 4 will be how much? 8 5 एंड to power 2 का 8 and 2 कितना is होगा? to power 8. 8। अब मुझे तो दोनों का बेस सेम है, ये कितना होगा? 10n और ये कितना होगा? 10 8। मुझे तो 10 n 8. का आंसर कितना आया? n is equal to 8. At 10 is equal to 8. तो सिंपल, कोई हार्ड लगा क्या? नहीं सर ये टेक्निक पहले वाले से ज्यादा अच्छी है। हाँ ये टेक्निक क्लियर है। तो यही लास्ट टाइम भी यही किए थे। जो सबसे पहले बताया था वो थोड़ी अलग थी, वो मिटा दूं, रब करूं? Yes sir. अब मुझे तो खुद से ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे क्या आप लोग? दिस वन, ये तो इजी है ना, देख के समझ में आ रहा, कर लोगे? मतलब ये जो 135 है इसके फैक्टर्स भी वैसे आना चाहिए। और शुड आई डू इट कि करके दिखाऊं? सर करके दिखा दो एक बार. सी कैन यू राइट लाइक दिस, 5n अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 2, उसको फर्स्ट पार्ट को। यस सर। Yes sir. Yes, sir. 3 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 3 रेज़ टू द पावर 2n अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3। 135 के फैक्टर्स निकालो, क्या क्या आएंगे देखो। 5 2 जा एंड 5 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, मीन हाउ मच इट केम? 5 रेज़ टू द पावर 1 into 3 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ तक कोई डाउट? No sir. No, sir. जो n वाले हैं उसको ऊपर रहने दो। It will be 3 raised to the power 2n.
is equal to 5 raised to the power 1 into 3 raised to the power 3 into 5 raised to the power 2 and 3 raised to the power 3. ये वाला मैंने ऊपर लेके चले गए ऐसे. Any doubt till here now? No, sir. No, sir. No, sir. Sure. Nobody is Yes, having sir. that doubt. Okay. No, sir. Now if you see यहाँ पे देखूं अगर अच्छे से मैं, so it is something what 3 raised to the power 6. ये 3 raised to the power 6 होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये 5 raised to the power 3 होगा. कोई डाउट? 5 raised to the power No 3. doubt, sir. पक्का? Yes, sir. Okay. Now see, I just want here something like this. 5 into 3 raised to the power 2 और सिर्फ n बाहर लेके आना है. तो देखो n को अगर मैंने बाहर गया तो यहाँ पे 1 था n के पास एंड यहाँ पे 3 का 2 था. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, No, sir. सिंपली मेरे को ऐसे अरेंज करना है कि 5 into 3 raised to the power 2 के फॉर्म में. तो सिर्फ बाहर मेरे क्या आएगा? बाहर क्या आएगा? N. बाहर क्या आएगा? बाहर क्या आएगा वो बताओ. N. नहीं नहीं, ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड आई एम सेइंग, ऑन द राइट हैंड साइड. अच्छे से देखो, मुझे बताओ अगर मेरे पास लिखा है 5 into 3 raised to the power 2 और इसको मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बताओ क्या होगा. वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 5 को कितना पावर मिलेगा? 5 into 3 and 3 raised to the power 6 होगा कि नहीं होगा बताओ. Yes, sir. होगा, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर 5 into 3 raised to the power 2 है तो मैं बाहर क्या लिखूं यहाँ पे? बेटा 5 के यहाँ पे 1 है तो मैं ऐसा क्या लिखूं जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने पे अंदर सेम आएगा? ये So 3. Sir, 3. 3. हाँ, ये लॉजिक निकल लगाना है क्योंकि मेरे को इसको सिर्फ इसके इक्विवेलेंट इसको लाना था. देखो बेस सेम है क्या दोनों का? No, Yes. sir. No, sir. बेटा बेस सेम नहीं है. 5 raised to the power 1 into 3 raised to the power 2, 5 raised to the power 1 into 3 raised to the power 2. बेस अलग है कि ये- सेम है? Yes, sir. Same है. जब बेस सेम है तो n की वैल्यू कितनी हुई? 3. In this question you need to put a logic. That's why I put it a question like this. यहाँ पे देखो आपके पास ये ऐसा था लेकिन आपको इसके हिसाब से एडजस्ट करना था तो ये you need to write the steps like this and then आपको एक नंबर बाहर निकालना था, उसका नाम था 3. अब जब 3 जैसे ही बाहर निकाले दोनों बेस सेम हो गए, पावर्स n is equal to 3. That's the question. Done? Still any doubt? You can do. I'll pause the recording. You can go through it. पक्का कोई डाउट नहीं है ना अभी? No, sir. No, sir. No, sir. Similar this question is also. Same question. जैसे मैंने बताया ना वैसे फैक्टर्स निकालना है बस. n वालों को एक साथ ला लो और करना. Try to solve this question number 6 and 7 is also easy. Same. 7 is also easy. बहुत 7 तो बहुत easy है. कौन सा क्वेश्चन बताओ अभी? ये बताओ. सर इसका आंसर बताना है. नहीं मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों को सॉल्व करना है. आंसर बता क्या करूँगा? Done? Any doubt till here now? Because these two question you can solve from there. Yes, sir. How many participants are there? Because I need to mark the attendance now. 21 only. CM is height. Yeah, CM is height. Advait, what happened? What is Hasliya? So should I stop the recording? Sir, can